Youth is the best time of life, and what you make of this time will decide the course of life for you. Greetings of the day to everyone present here. I, Ghazal Soni, on behalf of Disha Delphi Public School, feel honored to roll down the red carpet to welcome our dignitaries, guests, parents, teachers, and dear students on this special day. As we all know, on December 17, 1999, the UN General Assembly endorsed the recommendation made by the World Conference of Ministers responsible for youth, and International Youth Day was formed. It was first celebrated on August 12, 2000, and ever since, the day has been used to educate society, mobilize the youth in politics, and manage resources to address global problems. It's being celebrated to engage the youth in order to bring their voices, actions, and initiatives to the mainstream. If we talk about our motherland, India, this day becomes more important and more special as India is called the country of youth all over the world. There are 65 crore youth in our country up to the age of 35. That means there is a lot of manpower available in our country. But the need is to give them proper guidance and make them partners in the progress of the country, to provide them values, proper education, and make them technology experts, to save them from bad habits like intoxication, gambling, violence, etc. Because character building is absolutely essential for the progress of any nation and society. For this development and progress, and for making our country stand in the line of the developed countries, our youth will have to be meritorious, hardworking, patriotic, and imbued with the spirit of self social service. And all this starts with the right direction at the right age. Therefore, we have gathered here to celebrate International Youth Day by having some insightful guidance on how to have a right direction in life. Before I move further, I would like to introduce you all with our key speaker for today's webinar. He is Dr. KB Rath. He is a retired professor in education, RI Ajmer, principal of RI Ajmer and Bhubaneswar. He devoted his whole life to education. He was the pioneer for guidance and counseling program for RI Ajmer. He has been such a teacher who could easily connect with the students emotionally and psychologically. Being an educationist, he has always served for the betterment of the students by understanding their needs and challenges which they confront in their lives. Who else could be better than him to enlighten us on this subject matter, how to have a right direction in life? Ladies and gentlemen, without any further delay, now let me take this honor to invite our principal, Dr. I.P. Dubey, sir, to welcome our key speaker, Dr. Rath. Okay, very good afternoon, one to all. I, on the behalf of DDPS fraternity, would like to welcome Professor KB Rath, and it is a great privilege for us as well as for students. Certainly, they will get the best. So, wish you all a very happy International Youth Day, and it is a very important moment for students that certainly they must, because they are absolutely not in that sense to what is the right, what is the wrong path of the direction. Now, it is a matter of pride for DDPS school and fraternity that the professor sir is would like to give the actual sense of right directions in the life. How can we get, how can our student get the right direction, the meaning and the sense of that? So with that, once again, I would like to
welcome Professor KB Rath sir. Just start and just motivate and just deliver your this wonderful and very innovative topic for all of us, for the students. Thank you, sir. And now, please let us. We are waiting for your very wonderful speech and just start. Thank you very much. Thank you, Honorable Principal Sir, all my colleagues, and all my dear students who have been gathered today to celebrate that International Youth Day. Soni Madam has very clearly emphasized about the importance of Youth Day and how youth can contribute to the nation. If I am not wrong, friends, I can tell you this much. As an youth, this is a pride moment of you because you are not only an asset to yourself, but also you are an asset to your family, your society, as well as to the country itself. So friends, when you will go for because I can be an asset, but I will use that asset for the betterment of myself as well as for the betterment of the country itself. So friends, let's go to the topic as they have been pronounced your authority and the person who was introduced in the beginning, that how to select the right direction in your life. When I say the direction, it is two main things. One is the life, another is the direction. When I say the direction, because it is for something. What is that something? Because suppose you must have a goal in your life. And that goal also changes from time to time. For example, you are in school, so you must have a goal, how I will excel in my study, how I will pass the examination with good percentage of mark, how I can be a good human being, develop the character that I can deal with the persons very effectively. In that way, you have to select many goals in your life. But when you will search the direction for the goal, definitely those directions are different on the basis of the goal. So this topic is a very broad one. So where to start, how to start, it is a really very difficult one for me. Then what I decided, I thought it will be better to give you the common things, so where you can set the direction for each goal which you will addressed in your life. Friends, I always speak in multilingually, means I use both Hindi and English when I give my lecture because this is an automatic habit. So I will mix both these things and then come to our discussion. Let me share my screen and gradually I will come to the topic, which is the very important element which we all should acquire. It is not only the students, even we all should acquire, because we all have the different kind of goals we set in our life. That time also we have to channelize our direction to achieve the goal. So in that context, it will be beneficial for everybody. Okay, friends, let me start my sharing the screen with you and gradually Dear students, before Sir starts,
I would like to make a request, as the day is Youth Day, it's for you especially. So if you have any problem, if you have any challenge, anything, if you want to ask something, you can write down in the comment section and we and sir would love to address you on that. Okay, Yes, so we that's are right. waiting for your responses. Thank you, sir. Okay. So, friends, this is my heartiest welcome to all of you, even all my colleagues, my honorable principal, and to have a patient hearing or listening, I can say, not the hearing, listening to my things which we will discuss today. But friends, as I said in the beginning, that right direction is in your hand. Because when I say the concept right कहे तो हम कहते हैं क्योंकि I will do the work if I think it is right. So that right wrong will be decided by me. But when I decide that right, that times I should have sufficient knowledge, the way to select the means to achieve the goal, and also to observe the social norms, where I should see that really my contributions, my goal achievement, at least benefiting to somebody else. Maybe me, maybe my school, maybe my society, maybe my nation, wherever I am. So that right wrong, when you decide, but it is in your hand. And let's go to that, these two things, the life and the direction. Let's understand those things where you will develop an insight, the how I will set the direction for achieving the goal in my life. Okay, friends. Here, when I say the life is a span of time that is from the beginning to end. When I come to the life, then definitely I learn something by interacting in the society. And these two arrows, that shows there are something outside and there are some potentiality which is within me. If that will match, then definitely I will imbibe those things within me. Then I'll answer. For example, suppose a teacher is teaching in the class. I'll give all the examples to the school situation. I'll not go abroad, beyond this one. So when you match that one, just how teacher is teaching, that is outside stimulus for you. And if that teaching elements will be very clear to you, that means according to your potentiality, you are understanding those things and organizing in your mind, then you are making a balance between what is happening outside and what is within you. Then you learn those things in that way, that then you experience it. That experiences contributed to different kind of development. That is, these are the major, the physical development, emotional development, mental development, and a start for social development. And then other development aspect is there. But one thing always you remember, these development, when it happens, it cannot be in a uniform manner. Definitely, someone, I am excel in that one. Someone, I may be a medium one. Some, I may be less in that one. Because that's why there is an individual difference. Because we differ from each one, even within ourselves and even between the two persons in the society. That's why when I am different, then that depends on how I am interacting and experiencing, and I am setting the goal and doing the work in the life. Then in that way, my development will excel. And development, always remember, it's a continuous process. Don't think that it is only static और एक बार हो गया आगे नहीं होगा, इस प्रकार की कोई नहीं. डिपेंड करता है हाउ मच आई एम कंट्रीब्यूटिंग, आई एम डूइंग दैट वन, कितनी मैं समझता हूं, कितनी उसको एक्सरसाइज करता हूं, ये सब चीजों के ऊपर आपकी डिपेंड करेगा.
पर वही डेवलपमेंट वही चीजें कंट्रीब्यूट कहां से आ रहा है ना, जो गोल रख रहा हूं, जो मीन्स दे रहा हूं, दैट विल डायरेक्ट फॉर द डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोग्रेस इन माय लाइफ। जैसे आप स्टडी में करो, आपका स्कूल में आप डिबेट कंपटीशन में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, जिधर भी जाओ आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करो, जिसमें भी जाओगे देयर इज ए गोल, देयर आर मीन्स, एंड उस मीन्स को प्रॉपर समझ के चैनलाइज करना, दैट इज योर वर्क। इफ यू कैन नॉट चैनलाइज देम प्रॉपरली, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव दैट गोल। और एक चीज, इफ यू आर अचीविंग दैट गोल, टू व्हाट एक्सटेंट, that quantity and quality of that goal achievement, that may differ, but if you pursue it, then 100% you will excel day by one. But only thing is how to pursue, how to sustain on that task, that is the real matters, where you are responsible for it. So life, this is my life, I am responsible, and I can make my life. It is not others can help you to give the feedback, to assist you in the life making process, because you know very well, school experience always we remember, and school is a life making place where a teacher is the life maker and I am the life creator. इन सब चीजों के साथ मैं कैसे हार्मोनाइज करके आगे बढ़ूंगा, दैट इज द मेन थिंग। बट व्हेन आई वर्क, हाउ आई एम वर्किंग, दैट इज द मैटर ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स वेरी क्लियरली, राइट? एज आई सेड, you interact with the situation. Everywhere you have a situation, you have a self. Self means you, yourself in that condition. And you have own, definitely you are earning one way or developing your both cognitive and non-cognitive characteristics, means your intellectual matters and your social and emotional characteristics which you are developing. Both things are, and everything you will require when you will deal with the situation. But the situation is very different and it changes from place to place. My point of saying is, for example, we all are living very happily and we are enjoying our life. In between, situation came. You understand what is that situation? Pandemic. For that purpose, what happened? हमारा स्कूल बंद हुआ. Then obviously classroom experience may not be as equal as the online experience. But what happened? Because that situation come like that, उसको किसने लाया नहीं है, किसने जबरदस्त वो आ ही गया. Then मैं क्या करूं? मैं क्या छोड़ के भाग जाऊं? I have to deal with that situation. How? सपोज आप कहोगे, अरे यार ये ऑनलाइन का वो क्लासेस बोर हो गया, अरे इसमें क्या मजा नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता. Who is at loss? Because you have to think about it. कि मैं कैसे अपने आप को चैनलाइज करूं. I should get the maximum from that situation. That is the real wise mind. Suppose I cannot, then I am at the losing end. So friends, always remember, a right direction means how to make a balance between the self and the situation. That situation may be many. It may be school, different kind of situation you come across. If you go to the society, you will come across many different kind of situation. If you go to your friend circle, you will come across with a different kind of situation. And always remember, those in different situations, those situations which you are facing, आप एक ही तरह हर situation में behave नहीं कर सकते. You have to behave according to the situation. That is your power, right? That is your power. कैसे ये देख लीजिए. So you have to prepare yourself. Suppose always you are in the present conditions, whatever you have, and that will increase day by day, and you will achieve a goal, right?
गोल अचीवमेंट के बाद यू विल फील वेरी हैप्पी. आज आई हैव पुट ए पिक्चर फॉर ऑल ऑफ यू टू बी ऑलवेज हैप्पी लाइक दैट, राइट? इफ यू achieve the goal, definitely you'll be happy. And always remember, you cannot achieve the goal in vacuum. You have to do something. Means what resources I require, how to operate those situations, the element getting from the resources, how to operate it, that process, right? तो वो जो प्रोसेसेस होगा वो रिसोर्सेस को मैच करा के मैं करूंगा, राइट? तो वहां पर मेरे को कैसे करना है वो गोल अचीवमेंट, दैट आई विल डिसाइड. आई एम द क्रिएटर. तो वो डायरेक्शन जब मैं दूंगा, वहां क्यों मेरे को थिंक आउट करनी है, किस प्रकार से लेनी है सिचुएशंस, बिकॉज आई विल गेट मेनी प्लस पॉइंट. मीन्स जैसे आप इस पैंडेमिक सिचुएशंस में आपका ऑनलाइन क्लास हो रहा है एंड आपको मान लो कि गोल रखा जी हाउ टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्लासेस. अब ऑनलाइन क्लासेस पाने के लिए आपको वो मीन्स रिसोर्सेस, बिकॉज दे आर गिविंग मी द इंफॉर्मेशन, राइट? whether that information is sequentially organized or not, whether those information are meaningful to me or not, I am able to making a whole picture of that where I am getting the insight about the subject matter or not. Right? ये सब चीजें आपको विचार करनी पड़ेगी. Then आप डायरेक्शन देंगे how to engage yourself in that or during the period of your online class. When you will engage, हो सकता है कोई क्लास अच्छा भी नहीं लगेगा. How I will plan my strategy that get maximum? कुछ तो क्योंकि नॉर्मल क्लास नहीं होने की वजह से फेस टू फेस क्लास सिचुएशन डेफिनेटली कुछ शॉर्टकमिंग्स तो आएगा ही आएगा. बट हाउ टू कंपेंसेट दैट? कैन आई मेक द नोट ऑफ इट? कैन आई डू सम एक्स्ट्रा रीडिंग टू गेट द मैटर? आजकल सोर्सेस आपके टिप्स में है एंड माय डियर्स, you are very prompt, even more than that, in comparison to us, we all, about searching the matters and organizing it. Because हम लोग जो पढ़ाने जाते हैं क्लास में, you know far better than I am telling about the college students. When I was teaching something, I am stopped somewhere. थोड़ी सी एज हो गया हम लोगों की, थोड़ी दिमाग से निकल जाता है, अरे ये कहाँ चला गया. तो उस टाइम एक बच्चा पीछे बैठ के मोबाइल सर्च करके फटाफट इंफॉर्मेशन, सर वो स्टेज ये है. यू मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं. यू सर्च द मैटर ऑफ योरसेल्फ. व्हाई कांट यू सर्च द मैटर ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास and enrich yourself like that? Are you getting me? So this type of management is very essential for you. I will give you the tips how to do that. Then you have to actually, you are your creator, you have to create yourself. Suppose you have to create what? That is the question. What? Right? अब देख लीजिए what you have to create. ठीक. अब मैंने जनरल से बात करूंगा. मैं कोई स्पेसिफिक सिचुएशन, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, डिफरेंट गोल जब आप रखोगे, डायरेक्शन जब दोगे, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर. मैं अभी, बट ये कॉमन चीजें हैं, ये हर जगह काम आए, राइट? ये हर जगह जब काम आएगा, वो क्या है, क्या करोगे आप जब आप अपने आप को क्रिएट करोगे? यू क्रिएट योर थॉट, राइट? आई विल इलैबोरेट इट. कैसे करोगे, क्या क्या करना पड़ेगा, दैट आई विल इलैबोरेट यू जस्ट नाउ. ओके? बट उसी थॉट को जब वो क्लियर करोगे, उस टाइम वो थॉट में क्या क्या होगा, कैसे होगा, यू अंडरस्टैंड. मैं अभी थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ. देन योर इमोशन, राइट? इमोशन इज वेरी एसेंशियल. दोस्तों, यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ. आज एक दिन आपको मान अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता पढ़ने के लिए, और पता नहीं आज कैसे लग रहा है. इस टाइप सिचुएशन जब होता है, देन how much you can concentrate on your study. You can find out yourself doing all this. मैं बहुत सारे सिचुएशन आपको दूंगा where you can
एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ एंड फाइंड आउट दोस थिंग, क्योंकि ये मैं बहुत साल से इसके ऊपर काफी काम बच्चों के साथ करता हूँ, राइट। तो आप इसको देन यू क्रिएट योर थॉट, you create your emotion, then you create your action. So that is the main जो action, what type of action, how you will process, and how to operate the process, and how you will sustain that process. That action is very important. Thought तो बना लिया, इमोशन को स्ट्रेंथन कर दिया, मोटिवेट कर दिया, आप फील बिलोंगिंगनेस इन दैट, वो करके आप आगे चलेंगे, पर देन एक्शन को क्रिएट करोगे। ये सभी चीज जब वो करोगे, देन एक बात को ध्यान रखना, जो हमारा हम बहुत सारे जब पढ़ते हैं लिटरेचर एंड अप्लाई करते हैं, इसको बहुत आप भी थोड़ी अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें वो क्या है। क्योंकि जब हम फोकस करते हैं कॉग्निटिव एरिया, कॉग्निटिव मीन्स आवर थिंकिंग, आवर लर्निंग, आवर वो सब चीजें उधर साइड में रहेगी। अफेक्टिव साइड में क्या आएगा, वो दैट इज योर एटीट्यूड, योर इमोशंस, वो सारी चीजें आएगा। साइकोमोटर में क्या आएगा, दोज आर द स्किल्स, राइट, राइटिंग स्किल्स हुआ, प्रैक्टिकल करते समय कैसा, स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्किल जो मोटर वर्क है, राइट, मोटर वर्क वो स्किल्स आएगा। एंड इसके ऊपर बहुत सारे बातें शुरू से 64 से हो ही रही है। एंड हमारा एजुकेशन के अंदर जब लेसन प्लान करते हैं हमारे टीचर्स लोग इसके ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। बट एक रिमेंबर, वो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरैक्टिव है। जब इंटरैक्टिव आप प्रेजेंट करोगे, कुछ एरिया बीच में जो येलो एरिया दिख रहा है आपको, तो वो ये स्लाइड विजिबल है या नहीं? सर इट्स विजिबल। विजिबल, ओके। वो जो येलो एरिया है, उस येलो एरिया को देखिए, दैट इज ए सेंट्रल पार्ट। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है, if you will do that one, then we can do better in cognitive, we can better to affective, you can better in the psychomotor. What is that? That is, जैसे आपने देखा होगा, उसको बहुत प्रकार के ओवरलैपिंग टर्म्स है, राइट। कोई कहता है कमिटमेंट, कोई कहता है कोनेशन, दैट इज द विल, डिजायर, राइट, विल डिजायर। अब रिसेंट रिसर्च से बहुत सारे काम हो रहा है, फ्लो, जो आपके अंदर एक फ्लो है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है, when you have that type of flow, that type of, जिसको हिंदी में कहते हैं जज्बा, पता नहीं I am pronounce it correctly and connected to you in that way which is meaningful to you or not, I don't know, but वो जो चीजें जब आएगा, then आप जब काम करोगे, उसको प्लानिंग करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, देखना आप आपका भूख, आपका ये सब कुछ भूल जाओगे, यू विल बी टोटली एनग्रस्ड इन योर वर्क। वो जब आएगा, यू क्रिएट, फोकस वहां करिए। उसको आने के बाद आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका एक लगन होना चाहिए उस काम के प्रति। उसको कैसे करेंगे वो बिल्कुल सेपरेट है, ये मैं यहाँ नहीं ला रहा हूँ, उसका बहुत इतिहास है, ठीक है। वो बहुत सारे काम उसके ऊपर हो रहा है एंड वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओनली थिंग इज द मेजरमेंट पार्ट इज रियली डिफिकल्ट फॉर दैट। तो ये आप फोकस करिए। अब आप जब चलेंगे धीरे धीरे, मैंने कहा थॉट, एक्शन एंड थॉट, इमोशंस एंड एक्शंस, ये जब तीनों की बात करोगे, अब थॉट तो समझ पा रहे, थॉट का मतलब क्या होता है ना, जब थिंकिंग का प्रोडक्ट है थॉट। थिंकिंग समझ रहे हो, सोचना। आप कभी देखना आपके माइंड हर टाइम सोचता रहता है, क्या सोचता है दैट मैटर्स। इवन कि मैं अभी बोल रहा हूं, आप भी सोचते होंगे और कुछ, वो भी होता होगा। whether you think about my stimulus, my information, or you can think yourself, अरे क्या है ये, जैसे ऑनलाइन क्लास में होता है उसी प्रकार की, अपना लॉगिन तो कर दिया, बट यू थिंक इन, तो कौन देखता है क्या करता है, तो उस प्रकार के आप भी सोच सकते हो। बट उसी सोच से आपका एक थॉट, दैट मीन्स द आइडिया, जो कि एक अरेंज होता है। जैसे आप ये कहते हो मेरे को, अच्छा ये आ गया गोल आपके सामने, मेरे ये एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, ये पैंडेमिक हो गया,
तो मैंने अभी तक अपने को अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाया जिसमें आई कैन डू समथिंग गुड इन द एग्जामिनेशन। किस प्रकार से एग्जामिनेशन को करो, राइट। देन जब आप इस प्रकार के सोचोगे देन आपकी फिर आइडिया ऑर्गेनाइज होगा। कैन आई रिवाइज द लेसन, कैन आई रीड एक्स्ट्रा मटेरियल टू डू इट, ये सब थॉट प्रोसेस है, राइट। सपोज वो थॉट होता है किस प्रकार की, एक होता है पॉजिटिव थॉट, एक होता है नेगेटिव थॉट। जिस टाइम आप कहोगे यस इफ आई ऑर्गेनाइज माई सेल्फ आई कैन डू द थिंग्स, देन वो तो पॉजिटिव हो गया, यस आई कैन डू इट, आई एम कॉम्पिटेंट एनफ टू डू इट, आई एम वेरी स्किलफुल इन दैट। बट सपोज आप कहोगे अरे यार क्या करूं, कर नहीं सकता, ये इतने टाइम पे कैसे हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता, दिस इज योर नेगेटिव थॉट। मेनी टाइम्स फ्रेंड्स रिमेंबर दिस थिंग, this positive and the negative thought that control your direction, right? और उस टाइम जब थोड़ा किस प्रकार की थिंकिंग चाहिए आपको, you have to be very critical, you have to be critical, you have to be analytic, right? You have to be creative, you have to be integrative। ये सब प्रकार के थॉट जब तक, मैं थोड़ी एग्जांपल एक आपके सामने रखता हूँ। मैं अक्सर इस प्रकार की करता हूं जी, कैसे आपका थिंकिंग प्रोसेस चलता है, आर यू इंटीग्रेटिव, आर यू क्रिएटिव, आर यू ये। मैंने क्या करा, मैं तो एक पिक्चर रख रहा हूं आपके सामने। यू योरसेल्फ, सपोज घर में हो, घर में आप 2-3 व्यक्ति इसको कर लो, राइट। क्या करना है, इस पिक्चर को देख के उसके बारे में थोड़ी लिखना है। आप जब लिखोगे यू विल फाइंड आउट जे first thing is not there will be a common answer from all। किस प्रकार के आप इंटरप्रेट करते हैं, कुछ लोग इंटरप्रेट ऐसे करेंगे, गुलाब के फूल रखा हुआ है, यहाँ भमरा घूम रहा है, यहाँ एक बिल्ली है, दैट मीन्स दे आर फोकस्ड ओनली ऑन द स्पेसिफिक थिंग्स एंड ये हायर लेवल थिंकिंग नहीं। जब आप इंटीग्रेट कर दोगे, यस मॉर्निंग शोज द डे, दैट मीन्स ये मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में ब्यूटीफुल होगा तो पूरा दिन ब्यूटीफुल होगा। इस प्रकार की क्रिएटिविटी आप एक्सप्रेस करते हैं, देन दैट इज रियली यू आर थिंकिंग इन द राइट वे। दैट थिंकिंग विल हेल्प यू टू डिसाइड द गोल as well as to decide the means and strategy to achieve the goal। Friends, remember this type of thinking, this type of thought process। और वहां पर फोकस कहां करोगे, ऑलवेज बी क्रिटिकल। और एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपके सामने एक पिक्चर है, वो आप व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, मैंने उसको वहां से ड्रॉ करा, राइट। ये पिक्चर को देखो, आप कैसे फोकस करते हैं उसी हिसाब से आप इंटरप्रेट करो। Either you will say half face towards you or half face in a side। फोकस करो, कौन सी जगह फोकस कर सकते हो। Suppose you will focus on the earrings and others, you will see that is a front side। Focus on the nose, you will find out that is a side one। Because meaning you will make, the way you make the meanings, the way you make the meaning that matters। So meaning making, that perceptual things is very important। and वो परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए, थिंकिंग के लिए ऑलवेज एक बात को ध्यान रखना, आपका परसेप्शन जरूर क्रिएट कर। परसेप्शन मीन्स जब स्टिमुलस बाहर देख रहे हो उसको मीनिंग कैसे दे रहे। मेनी टाइम्स एक एग्जांपल फिर आपके सामने क्या है, आप कैसे अपने आप को देख रहे, राइट। ये देखो एक बिल्ली अपने आप को शेर की तरह देख रहा है, जो अक्सर हम लोग करते हैं, राइट। क्या करते हैं, अरे मैं तो बहुत बड़ा सब कुछ कर सकता हूं। और सब कुछ करते मीन्स नहीं है करने के लिए, जब वो उतरते हैं कर नहीं पाते। बट एक परसेप्शन, क्लियर मीनिंग आपके बारे में होना बहुत जरूरी। समझ आप रहे ना मेरी बात। तो उसको देखना जो एक्चुअली मैं इस काम को कितने, एंड यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल,
you understand your attitude, then you can do very effectively. This is my guarantee. You can do very effectively in your life. That perception make you humble. That perception make you active. That perception make you happy, which everybody is searching nowadays, right? Self-growth literature, if you will see, और ये भरा हुआ है, right? How to be happy. फिर क्यों नहीं हैप्पी हो पाते? ये पैंडेमिक के पीरियड में जितना स्ट्रगल हम लोगों ने करा, दुनिया में सभी ने करा, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, वी ऑल सफर, बट उसी के अंदर मैं अपने आप को एडजस्ट करके सिचुएशन के साथ बैलेंस कर पाया या नहीं? हम हर टाइम, विशेष करके स्टूडेंट्स मास, हर टाइम दोस्त फेंकने लगे, अरे क्लास नहीं हो रहा है, अरे बेकार क्लास है, अरे ये है, अरे वो है। अरे भाई, उसमें लूज किसको हो रहा, कौन लूजर हो रहा है? आप ट्राई डेवलप, यू आर योर क्रिएटर and you have the potential. Always pursue yourself. And दोस्त जब नेगेटिव थॉट कर लोगे, मैं क्यों बता रहा हूं उसको, हम समझते नहीं इन चीजों का। ये नेगेटिव थॉट बहुत नुकसान करता है अपने आप, बहुत ज्यादा, राइट? ये सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप नेगेटिव थॉट रखोगे ना, देखो आप ये तो एसिड वाली वो मेडिकल चीजें, वो माने जो नेचुरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस that will happen, that is no doubt about it. But सबसे बड़ी बात क्या है, एक aura means how we look to others, right? जब आपका जैसे एक व्यक्ति रास्ते में देखोगे, किसी को मिलोगे ना, आप बहुत लाइक करोगे, क्योंकि वो ब्रिलियंट टाइप ऑफ ऑरा उनका होता है। ऑरा मीन्स पॉजिटिविटी थॉट का एक पॉजिटिव ऑरा निकलता है, which attract the positive things attract positive and negative attract negative. So that decrease your aura. आपको कोई देखते ही समझ जाएगा, नहीं ये अच्छा नहीं, डेफिनेटली आपको पता नहीं चलेगा, कोई आपको बोलता नहीं है, राइट? आपका रेजिस्टेंस पावर, आपका सिस्टम फंक्शन, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, राइट? और हार्मोन्स, जैसे हमारा जो हैप्पी हार्मोन्स है, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इसके जागे दूसरे हार्मोन, कॉर्टिसोल, डोपामाइन, इस प्रकार की जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट होगा, वो डाइट विल, वो मूड स्विंग, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए दोस्त, हैव ए पॉजिटिव थॉट, एंड उससे आप दूसरों की क्या हार्म करोगे तो ये तो पता नहीं है, बट यू विल हार्म यू। सो बी पॉजिटिव। सो थॉट प्रोसेस आप समझ लीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इंटीग्रेटिव थिंकिंग, उस प्रकार की थिंकिंग के साथ साथ दैट विल बी पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, बट दैट इज द थॉट पार्ट। When we come to the emotion part, when will come, अब इसको ओवरकम करने के लिए जो नेगेटिव थॉट होगा, इसको ओवरकम करने के लिए क्या करोगे, राइट? इसमें आप अपने आप ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर द क्रिएटर। तो एक छोटा सा एग्जांपल, मेरे इस बात को ध्यान करिए, हम हर टाइम एक जैसे बिहेव नहीं करते, वेरी राइट। सपोज आज मैंने काम करते करते सक्सेस नहीं हो पाया, तो कल भी सक्सेस नहीं होगा। वेयर इट इज रिटन, कहां लिखा हुआ है, इज इट ट्रू? और आज भी मैंने कर दिया, कल भी कर दूंगा, इसका गारंटी क्या? तो एवरी टाइम आई हैव टू बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इन माय अप्रोच टू सी दैट एक्चुअली आई एम फंक्शनिंग। देन कभी आप नेगेटिव इमोशंस मत लीजिए, दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग, मीन्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपने बारे में, दैट विल हैपन टू यू। मैं कर नहीं सकता तो मैं कर ही नहीं सकता, राइट? तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को समझिए, ये बड़ा डैमेज करता है, तो मेरे को पॉजिटिव वे में सोचना, राइट? और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, आप लोग घर बैठ के, यू क्लोज योर आईज एंड से एटलीस्ट 5 minutes about all the positivity you have, right?
and tell others to note down it. You will find out yourself after 1 minute or 2 minutes there is nothing to say. अब ट्राई करो. मैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट करा है इसके ऊपर, बच्चों को क्लास में कराता था, देखता था ये पॉजिटिव. क्योंकि जब आपके एक बिल्कुल हैबिट में पड़ जाए, when you are very habitual on that, then that will automatically, that flow will be automatically come to your mind. The positivity will come to your mind. If that positivity will govern in your mind, then definitely that give a positivity in your outcome. तो फ्रेंड इस बात को ध्यान रखना. आजकल हंसने के लिए तो हम लोग भूल गए हैं, बट ऑलवेज, और हंसना पैसा तो नहीं पड़ता, बट हम हंसना भूल जाते हैं. पता नहीं, लगता है जैसे हमको बहुत ज्यादा किसी ने चार्ज कर लेगा, अरे हंस लिया रे. कभी ट्राई टू स्माइल योरसेल्फ, राइट. और थोड़ी एम्पैथेटिक बनो. एम्पैथेटिक मीन्स it is not only to be kind to others. If you are kind to others, it's a two-way process. If you are kind to others, he will also come to know that you are actually feeling kindness towards him or her. ये जो two-way, sympathetic हो गया एक way. अरे यार बेचारा वो पुराना दिन जो आप अभी भी कह रहे हैं, अरे बेचारा बोल ही रहा है, तो इस प्रकार की वो भी आपके मन में आता होगा. बट आप एक्चुअली सर थक गए होंगे. इस प्रकार की जो फीलिंग जब आप एक्सप्रेस करोगे, मेरे क्लास में तो मैं समझ जाता हूँ. एक्चुअली माय स्टूडेंट्स आर फेसिंग बिकॉज माय पैशन इज टीचिंग एंड आई लाइक टीचिंग वेरी मच, राइट. तो माय स्टूडेंट्स आर माय असेट. दे गिव मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, राइट. तो इसलिए वो चीजों को आप एम्पैथेटिक रहे और हर टाइम एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना. सेल्फ टॉक मीन्स यू टॉक टू आवरसेल्फ, राइट. वी टॉक टू आवरसेल्फ. जब अपने आप को बात करेंगे पॉजिटिव वे में, राइट. सुबह उठते ही यस आई कैन डू वेरी मच. जैसे अब मिरर के सामने सुबह उठते ही तो मुंह धोते हैं, ये करते हैं, उस टाइम कहे प्रभु आज का दिन तो बहुत बढ़िया जाएगा. यू आर रियली very helpful to me and giving all your blessings to me. Do all such things. Or develop a small card, visiting card type का. Write some positive self-talk, माने positive about you, which you want to inculcate within yourself. And उसको बार बार देखते रहिए. देखना that will also influence. But it is time taking. Because changing the subconscious mind always takes time. And definitely, but it will work. Time taking, but it will work. Minimum 21 days, 1 month, it will take, but persistently, consistently, you will do it, then definitely you will come. Now come to the emotion part. Emotion, you understand what is the emotion. आपका गुस्सा positive emotions है, negative emotions हैं. आप positive emotions होगा, you feel very happy, right? Negative emotions होगा, obviously, that will check your cognitive activity, that performance को भी रोक देगा. तो उसको आप अपनी इमोशन को पहचानिए, राइट. उसका नाम दीजिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स टू डू दैट. देन ऑलवेज हैव ए सेल्फ टॉक, अंडरस्टैंड योर पावर, and then that power, potentiality which you are internalizing yourself and expressing it, yes, I have this type of potentiality, then that will motivate you. Always try to motivate yourself. बाहर वाले जो motivate करेंगे, that is the extrinsic motivation that continue for some time. But if you will intrinsically motivated, that means if you motivate yourself, then that will continue forever. So उसको करिए. दूसरों की इमोशन भी समझिए. देने के रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम बहुत प्रकार की टेक्निक सिखाते हैं, जो कैसे कम्युनिकेट करे अगले के साथ, जो कि आप अपनी. तो योर इमोशन शुड बी क्रिएटेड. मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें? जब नेगेटिव इमोशंस होगा, आपके पास इस प्रकार के थॉट आएंगे, राइट. आई एम वर्थलेस, इट इज होपलेस, आई कैनॉट डू एनीथिंग. इस प्रकार के थॉट ऑलवेज आए, राइट. तो वो थॉट हमका डेफिनेटली इट विल रेस्ट्रिक्ट आवर गोल अचीवमेंट इन योर लाइफ, राइट. ये करना. देन एक एंग्शियस सिचुएशंस मैक्सिमम टाइम हो जाता है.
इसमें क्या होगा ना, छोटा सा कोई चीज, जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन से आ गया, अब देखना कितनी एंजाइटी बढ़ गया था लोगों के पास। अरे क्या होगा, टेरिबल होगा, मैं पर अब ये करूं, मेरे को हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं होते हुए भी उनका ब्लड प्रेशर ये सब बढ़ जाता है। दे बिकम वेरी पेशेंस, पेशेंस नहीं रहेगा, एंड टेंशन, ये सब चीजें आ जाएगी, राइट। वो इस प्रकार के थॉट आपका नेगेटिव इमोशन, कब एंगर, यू नो, बहुत सारे कोटेशन, बहुत सारे, आप व्हाट्सएप यूजर होंगे तो आपको जरूर पता होगा कितनी चीजें आता है, क्रोध कैसे ये नष्ट कर देता है, वो करता है, वो करता है, बहुत सारे बातें तो आता है, बट हाउ टू कंट्रोल, हमारा बिल्कुल टेक्निक्स है, एंगर मैनेजमेंट, एंगर लॉग मेंटेन करा के, देन वी कंट्रोल, वी हेल्प दैट हैबिट, हाउ टू कंट्रोल दैट, राइट। तो फ्रेंड्स, थॉट, इमोशंस, or I will take only 5-10 minutes more. Then action means you will execute your plan. You have a plan. Whenever you plan for something else, if you do a reverse planning, that will be quite helpful to you to reach at the destination. And that reverse planning your direction को clear कर देगा. What is reverse planning? You first decide what is the outcome. क्या आपको पाना है? And on the basis of the outcome, decide what are the process required. मैं कैसे करूं जी, ये मैं सोचता हूं. Then you decide, suppose इस प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए what are the inputs I need. then इस प्रकार की आप प्लान करोगे, रिवर्स प्लानिंग, बट उसके लिए थोड़ी सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी, राइट। सेल्फ कंट्रोल में बाधा कहाँ आती है, ठीक है, क्योंकि जो आपका डिजायर है, उस डिजायर को पाने के लिए आप अपने आप को थोड़ी कंट्रोल, उस कंट्रोल में पहला क्या करना, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। हमारे बच्चों के पास कभी ये चीजें नहीं होता, जे आज जो चीजें मैं नहीं पाया कल नहीं होगा, ये कहां लिखा। ये इवन की छोटे बच्चों को उस प्रकार के डिले इन ग्रेटिफिकेशन, राइट, ये हम कभी ट्रेनिंग नहीं देते, क्योंकि हम तो बड़े प्यार में रहते हैं। वो मांगता मेरे को ये ला दो, ले, ये ला दो, ले, तो वो समझता है क्या, मैं जो मांगूंगा वो इमीडिएटली मिल जाएगा। अब बाई चांस उस टाइम में आप नहीं दे पा रहे हैं, दैट क्रिएट द डिस्टर्बेंसेस। तो चाइल्ड कैसे ऑब्सेशन, अदर टाइप ऑफ बिहेवियर, एग्रेशन सीखता है, इट्स बिकॉज दे डोंट हैव द डिलेइंग ग्रेटिफिकेशंस। आपने वो मार्शलो थ्योरी को पढ़ा होगा, जहां वो 5 बच्चों को दिया टॉफी, राइट, टॉफी दिया, टीचर ने कहा कि आप इंतजार करो, मैं आ रहा हूं, मैं आने के बाद मैं जब कहूंगा तब खाना। पर टीचर ने जब आया देखा 3 बच्चे ऐसे हैं, वो खा खू के वो टॉफी के पन्नी को वहां रख रखे हैं, ठीक है। बाकी 2 बच्चे थे, दे वर वेटिंग, टॉफी इज इन फ्रंट ऑफ देम। देन उस मास्टरों ने, उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए इनको स्टडी करा। जो लोग डिले इन ग्रेटिफिकेशन थे, जो पेशेंस रखे थे, बात करें, दे डेवलप्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। बहुत अच्छा थ्योरी उन्होंने डेवलप करा है। तो ये डिले इन ग्रेटिफिकेशन ऑलवेज हेल्प्स, राइट। टेम्पटेशन बहुत प्रकार की होती है, आप कैसे उसको चेक करोगे। प्लान करें आगे के लिए, राइट, क्योंकि प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल। तो आप पूरा आपका प्लानिंग, जो मैंने कहा रिवर्स प्लानिंग आप करें एक्शंस के लिए, वो प्लान थोड़ी सी आगे की गोल को रख के भी करोगे, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। और कुछ सेल्फ कंट्रोल की भी प्रैक्टिस करना, राइट। आराम से बैठ के जो थॉट आता है, कहाँ डिस्टर्बेंस होती है, कंसंट्रेशन नहीं बनता, वहां पर करने के लिए जब एक्सरसाइज वगैरह आप करोगे एंड मेडिटेशंस, दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बट एक चीज ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंस को जरूर याद रखना। आज मैं इसको नहीं करता हूं तो मेरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मैं किस प्रकार, राइट।
तो ये जरूर सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करिए। देन सेल्फ डिसिप्लिन भी आपको करना पड़ेगा, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए गोल को थोड़ी सी, जब आप प्लान करते हो गोल क्या पाना है, उसको थोड़ी छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो, राइट। टास्क एनालिसिस दैट वी टॉक अबाउट इट, बट यू जस्ट छोटे छोटे गोल कर दो, उसको एक एक करके पाने की कोशिश करो। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू डिसाइड द गोल एंड अचीव, राइट। अपना इंट्रिंसिक मोटिवेशन जरूर रखें। मैं जो आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, वो जो जज्बा, वो जो फ्लो, वो जो विल, ये जरूर होना चाहिए। उसको कैसे करनी है उसका, राइट। देन टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन, जैसे मैंने पहले बात करा, वो सेल्फ डिसिप्लिन में बाधक होती है। देन आपका ब्रेकफास्ट वगैरह जो मिसिंग करते हो वो कभी नहीं करना। हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड भी खाना, क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत मदद करता है। अब आप बीच में जरूर ब्रेक लीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, ये सब काम करिए। देन सबसे बड़ी बात, फॉरगिव योरसेल्फ। उसका मतलब आज मेरे से एक गलती हुआ, मैं नहीं कर पाया, एनालाइज, रिफ्लेक्ट ऑन इट, राइट। देन रेडी फॉर द टुमारो। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा। मैं जो बात एक मंत्र कहा था, जे आज नहीं होगा तो कल नहीं होगा, कल लिखा हुआ है, आई कैन डू इट, राइट। देन लास्ट वन, आपको बहुत बोर होते होंगे आप लोग, वो बोर्डम को कैसे हैंडल करें, वो बहुत जरूरी है उसी बोर्डम को हैंडल करने के लिए। नहीं तो आपका परसिस्टेंट एक्शन गोल के प्रति होगा ही नहीं। तो ये अपने आप को जाने, अपने एबिलिटी को जाने, अपनी शॉर्टकमिंग्स को जाने, राइट। तो उसके बाद रिफ्लेक्ट जरूर करें। रिफ्लेक्ट मीन्स आप अपनी जो काम करते हो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये सब चीजों को, एंड देन ऑलवेज रिमेंबर, आपका बिहेवियर की जो कंट्रोल है वो इंटरनल होना चाहिए। मीन्स जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, आपने अच्छा मार्क रखा, क्या आप ये सोचते हो कि मैंने अच्छा पढ़ा, मेहनत करा, तब जाके मैंने अच्छा मार्क रखा, या टीचर ने मेरे को अच्छा मार्क दे दिया? तो ये टीचर वाला दे दिया तो दैट इज आउटसाइड कंट्रोल, एक्सटर्नल लोगों पर कंट्रोल बहुत नुकसानदायी हो जाती है, राइट। अपने अंदर कुछ ग्रो नहीं होता। सपोज आई एम इंटरनली कंट्रोल, आई विल ट्राई। देन सबसे बड़ी बात, ओपननेस टू द न्यू एक्सपीरियंस, बी ओपन। हम किसी के बातों को आज इट इज रिसीव करें ना करें, एवरीबडी इज सेइंग समथिंग गुड, ट्राई टू फाइंड आउट दैट वन। सो बी ओपन टू अदर्स, have a critical thinking on that, analyze that, then think which one I can do, right? So be open to experience. So friends, तीनों बातें मेन, thought, emotions and action. And this is the main thing where you can set your right directions towards your goal. शायद बोर कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा, मैं नहीं जानता. So last one. So, sir, thank you so thanks much. a lot. Certainly, And your yes, thank words, your guidance and knowledge which you shared will benefit our students, and they will use them to help themselves to grow in the life. Sir, actually you included everything. बहुत अच्छा लगा हम सबको, आपका हर एक वर्ड इतना वर्थ था. एक्चुअली यू इंक्लूडेड एवरीथिंग, चाहे वो इमोशन से रिलेटेड हो, वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, वो कोई परसेप्शन हो या थॉट्स हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो हमारे जो लिसनर्स है, आई थिंक सबके पास अब एक डायरेक्शन है, कौन से एस्पेक्ट को, कौन से फेज को, कौन से चैलेंज को हम किस तरह से डील कर सकते हैं लाइफ में. सर, वन थिंग आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों से रिलेटेड नहीं है. जैसे आपने डिफरेंट नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात किया था, एंगर होता है, डिप्रेशन है, अंडर एस्टिमेशन है. आई थिंक बच्चे ही नहीं, एट एवरी स्टेज वी ऑल्सो फेस दीज चैलेंजेस. So sir, how to overcome all these emotions? Like मुझे पता है कि जैसा आपने बोला कि लाइफ में हम एक ही जैसे मूड में, एक ही जैसे इमोशन में नहीं रह सकते.
So it's not possible for anyone to be never angry. But what I want to ask you कि हम एंग्री भी होंगे, हम कभी डिप्रेशन में भी आएंगे, लेकिन इन इमोशंस का इम्पैक्ट, इनकी फ्लुएंसी, इनका मतलब जो इनकी फ्रीक्वेंसी है और जो इंटेंसिटी है, इसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सी, जब मैंने आपको एंगर होते हैं, ये फिर एंगर इज योर जस्ट लाइक टेम्पर टेंट्रम, ऑटोमेटिक, राइट? ऑटोमेटिक तो सिचुएशन आ जाता है। वहां पर हम क्या कराते हैं, एक वर्कशीट लॉग बनाते हैं, क्योंकि वंस यू डेवलप योर इनसाइट, इस वजह से हो रहा है, इफ यू आर कन्विंस्ड देन यू कैन डू इट। समझ आ पा रहा है? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी इनसाइट को क्लैरिटी देने के लिए टाइम टेकिंग है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अपना जो असली बातें जो हम लोग कभी समझते नहीं, हम कहते हैं ये साइकोलॉजिस्ट है, वो काउंसलर है, वो साइकेट्रिस्ट है, तो ये हमको कह दिया, एक गोली दे दिया, एक गोली खाया तो कल ठीक हो जाऊंगा। हमारे उसमें से ये नहीं होता, क्योंकि आप इसी माइंड हैबिट को डेवलप करने में यू हैव टेकन ए लॉट ऑफ टाइम। और आप कहते हो हमको जो आप 2 दिन में ठीक कर दीजिए, हाउ? तो उसमें क्या है, हम क्या है लॉग मेंटेन करते हैं, आपको देंगे कि लॉग मेंटेन करने, आप डेट लिखिए, टाइम लिखिए, सिचुएशन लिखिए जहां पर आपको एंगर आया, राइट? जहां पर आपको गुस्सा हुए, आपका फीलिंग किस प्रकार था, देखो री इनसाइट, आपको सोचने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं, राइट? यू राइट डाउन व्हाई, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग यू, देन यू ऑल्सो राइट डाउन व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस। देन फिर हम उसमें आपका रिफ्लेक्शन को और मजबूत करने के लिए लिखते, उसके सामने लिखो व्हाट यू कुड हैव डन। जी ये एंगर नहीं आता मैडम, ये आप 15-20 दिन करके देखिए कितना धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं। और मैडम थोड़ी टाइम टेकिंग, आप कहेंगे एक बच्चे ने एक प्रश्न छोड़ा था, दैट इज व्हेन आई एम सिटिंग टू स्टडी, उस समय के बाद मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, राइट? एक बच्चे ने अभी छोड़ा था चैट मैसेज, व्हिच आई हैव सीन इट। कैन आई आंसर दैट वन? Definitely, sir. We would love to hear that. माय डियर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड होगा जिसने पूछा है। देखो, आप जब पढ़ने बैठते हैं, आपके तो कुछ समय के बाद मेरा कंसंट्रेशन हट जाता है। इसका मतलब क्या? समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हिच इज वेरी प्रिवेलेंट and very strong, that impulse. When you focus on your study, that time automatically वो चीजें आपके माइंड पे आ रहा है, राइट? एंड आपके माइंड के जो थॉट प्रोसेस जो इधर उधर आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उनको पहले रिलीज करना होगा। उनको जब तक रिलीज नहीं करते हो, वो बार बार उसका स्ट्रेंथ है, वो आपका वो क्या है, बेटर टू हैव डिस्कशन, better to have neutralize those things। या आपका पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, जैसे घर में मम्मी पापा को तो जानते हैं आप, उनका एक ही रट्टा है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है? और हम तो कहते देते, बच्चा क्या करेगा बेचारा, वेरी ओबीडियंट टू द पेरेंट्स, होना तो पड़ेगा, राइट? और ओबीडियंट होके वो आके चुप करके बैठ जाता है, दिखा के मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूं दिखा रहा है, तो पढ़ने के लिए जो इंटरेस्ट है, जो काम है, वो हो रहा है क्या? तो इसलिए बेटा वो चीजें हैं। एंड और एक छोटा प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ते टाइम ट्राई टू डेवलप ए नोट, उस नोट को ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के रूप में बनाने की कोशिश करो, शायद माइंड इधर को अट्रैक्ट हो जाएगा। स्टडी पढ़ने के बाद से उसको खाली पेपर पेन रख के उनको एक मैपिंग फॉर्म में जो कंटेंट है उसको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर मीनिंगफुल फॉर्म में मैप करो। नेट से थोड़ी ग्राफिक ऑर्गेनाइजर देख लेना, उस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के रूप में अपना पढ़ते हुए कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो, काफी माइंड इधर को जाएगा। व्हेन यू विल बी वेरी क्लियर, जब वो इंसाइट बनेगा ना, आपको बड़ा खुशी लगेगा, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ओके, 3 चीजों को थोड़ी ध्यान रखो। जी मैडम।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके एक्चुअली आपके एग्जाम्पल्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि हम सब उनको अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमने भी ये सारी चीजें कभी तो बोली थी। दे आर वेरी रियलिस्टिक सर। एंड वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग इन आवर वे बाय चित्रा मैम। सो चित्रा मैम, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. जी So this was really a very interesting seminar, and I specifically focused onto the words that you used: heart, emotion, and action to be in line. thought, emotions, and action. But what happens is they are never in line. Like, particularly if I talk about myself, they are never in line. I'll think of doing something, but the emotions, they would be craving towards something else, and action would be going somewhere else only. So how to ये put things in ठीक line? क्या है ना मैडम, आप जब सोच रहे हैं पहले वो थॉट में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? आप जब सोचोगे, मैं थोड़ी सी आपको ये 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देने के लिए मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा। क्या है? व्हाट आपको सामने दिख रहा है, व्हाई के बारे में सोचो, ये क्यों है। मेरे पास बहुत प्रकार के, मैं क्लास में ट्रेंड करने के लिए बहुत प्रकार की पिक्चर दिखा। जैसे आप देखोगे एक मेंढक दिखेगा आपको, जब थोड़ी सी उसको घुमा देंगे, दैट विल बी हॉर्स, राइट? इसीलिए मैं दिखाता हूं जो चीज दिख रहा है, व्हाट जो है, इट मे नॉट बी द व्हाई, राइट? तो थोड़ी सी उसको 4 एंगल से दिखा के, तो व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इस प्रकार के प्रश्न पूछ के आप उनको करिए। बाकी जहां तक कहे इमोशंस, मैडम वो इतनी जल्दी तक, क्योंकि दैट इज यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड। आप कितनी सेंसिटिव है, मैं तो यहाँ बैठ के, मैं आप मेरे सामने होते तो मैं बता देता, क्योंकि आपके साथ में 15 मिनट बात करूं तो मैं ले लूंगा जी आप कितनी सेंसिटिव है, किसी इशू को ले रहे हैं, वो तो कर लूंगा यहाँ से। पर यहाँ के लिए मेरे आपके साथ 15-20 मिनट बैठना पड़ेगा, और मैंने अभी बोल दिया तो यू विल बी वेरी कशियस, तो आप वो चीजों को छोड़ोगे जो मेरे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन इज वेरी क्लेवर। मैडम हम तो इन लोगों के साथ डील करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है, 1-1 घंटे तक का कोई आंसर ही नहीं आता। तो इमोशन सपोज होती है, दैट हेल्दी इमोशंस आप कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप घर के अंदर किसी में भी, one more question, how to control mobile action now in a big issue because of that. तो आप जब वो घर के अंदर रिएक्ट करते हैं, आप खुद ही अपने आप को एनालाइज करें, राइट? खुद ही एनालाइज करें। इसके हम सेल्फ हेल्प का डिफरेंट वर्कशीट यूज करते हैं, वर्कशीट सेल्फ हेल्प का। क्योंकि मैडम क्या है, जब तक हमारे माइंड को क्लैरिटी नहीं होता, we are not convinced, then we cannot do it. हम बड़े लोग बहुत बातें करते हैं, हमका आजकल तो 1 मांगो 5 फ्री मिलता है उपदेश। Yes. आप भी जितना मर्जी चाहे आप अपनी झोले से निकाल के देते जाओगे, ले ये भी ले, वो भी ले, वो भी ले, कोई कमी नहीं है। बट कितनी वर्केबल है, राइट? वर्केबल के लिए क्या करना पड़ेगा? आई विल मेक यू रियलाइज, yes, if you do in this manner, then it can work in this manner which you will realize. तो उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशीट यूज करते हैं, राइट? वो वर्कशीट के माध्यम से आप इंसिडेंट्स को ये करके, मैं इमोशन कितनी बार हुआ था, क्यों हुआ था, आप करके 1 हफ्ता देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आएगा। और आपको ये जरूर कॉन्सिक्वेंस को जरूर लिखना, क्योंकि दैट इज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो कॉन्सिक्वेंस आपने क्रिएट करा वो सिचुएशन में, यू आर रिस्पॉन्सिबल, दैट नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। आप ये मत कहो ना उन्होंने मेरे को गुस्सा दिला दिया या उन्होंने मेरे को परेशान कर लिया, आपने हुए। समझ आ रही मेरे बात? तो वो कैसे कंट्रोल करनी है, दैट टेक्स टाइम। इस प्रकार से शुरू करो। आप ये सारिका है ना, वो मेरा स्टूडेंट है, उसके पास मेरे सारे नंबर है, वो है। आपको जब भी चाहिए आप सारिका से बात करके मेरे नंबर लेके मेरे से बात करें। Thank you, sir. ठीक है, Thank ठीक you. है।
अच्छा, एक ये था, किसने एक प्रश्न पूछा था, मोबाइल मोबाइल वो आदत डाला, किसने डाला? खुद में। मोबाइल ने तो नहीं डाला ना, आपने डाला। आपने कभी सोचा, एनालिसिस करा इस मोबाइल पे कितने आवर में दे रहा हूं? मी फ्रॉम गणेश माकड़। ओके गणेश जी, आपने आपने जब कर, ये आदत किसने डाला? मम्मी ने कभी नहीं कहा होगा, पापा ने कभी नहीं कहा होगा, या आपकी प्रिय टीचर ने कभी नहीं कहा होगा। आप ही छुप छुप के, जब टीचर कहेगा मोबाइल मत यूज करना, आप ही छुप छुप के यूज करें। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्यों? आप देखिए अब क्यों आदत में आ रहा है, क्योंकि कोई चीज जो आपको अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करता है, सपोज इट इज समथिंग पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूटिंग टू योर स्टडी, देन गो अहेड, नथिंग हार्म इन इट। बट सपोज वो नहीं कर रहा है, देन आप डिटरमाइन करें हाउ टू चेंज इट, आपको करना पड़ेगा। देन टेक्निक हम बताते हैं ये एक टाइम में, क्योंकि आपका वो समझना पड़ेगा ना क्या इंटरेस्ट है आपका, जिस वजह से आप वो मोबाइल के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, राइट? वो जब तक नहीं जानते हम, तब तक आपको क्या बताएं। आपने आदत डाला और आप मेरे को पूछ रहे हो मैं ठीक कैसे करूं? आप करो ना, करके जहां दिक्कत आती है हमसे बात करो, फिर हम हेल्प करेंगे आपको। जाओ और बोल सारिका, हो गया? ठीक रहा? जी सर। Thank you very much, sir. Thank you so much. Now, I would like to invite Dr. Sarika Mohta ma'am, honorary member of DDS Society, on behalf of DDS Society to extend a vote of thanks. जैसा कि आपको सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैं सर की स्टूडेंट हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड एंड यू कैन से ब्लेस्ड कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, बिकॉज यू आर दैट वन टीचर जिन्होंने बताया एक्चुअली व्हाट द टीचर इज, बिकॉज ही इज दैट वन टीचर जो टीचर्स डे पे भी खुद ही पार्टी देते थे, चिल्ड्रंस डे पे खुद ही पार्टी देते थे, और कोई भी ओकेजन हो पार्टी हमेशा सर की तरफ से ही होती थी, राइट सर? हम कैंपस में, मैंने सर के अंडर डिप्लोमा किया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 1 साल अजमेर के अंदर। उस 1 साल में हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं होती थी जिसका समाधान सर के पास नहीं होता था, या हम क्या करते थे सर को पता नहीं होता था। सो ही इज दैट वन टीचर जिनकी क्लास के लिए हम खाना छोड़ सकते थे, सोना छोड़ सकते थे, नहाना छोड़ सकते थे, कुछ भी छोड़ सकते थे, एनीथिंग कैन हैपन बट क्लास मिस नहीं होना चाहिए। एंड स्टिल टुडे अगर सर बोलने को तैयार है तो मैं पूरे 12 घंटे, 24 घंटे और 36 घंटे सुनने को तैयार हूँ। सो आई एम सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड दैट आई एम योर स्टूडेंट सर। और मेरी आपसे, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत इंसाइटफुल था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आपके स्टूडेंट्स को लेके काफी अच्छे रिसर्च भी है और पकड़ भी है, प्लस आप बच्चों के लेवल पे जाके बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अगर आप हमें इजाजत दें तो हम आगे भी आपके सेशन, जैसे आज का सेशन थोड़ा जनरल था, हम उनको एक पर्टिकुलर चीजों पे प्लान करना चाहेंगे, जैसे कि हाउ टू ओवरकम विद द नेगेटिव थिंकिंग। यार अधिकतर बच्चों का प्रॉब्लम है, जैसे मेरे खुद का बेटा मुझे बोलता है, कहता है मम्मी पढ़ना चाहता हूँ लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ मुझे दुनिया के सारे काम याद आ जाते हैं, राइट? जैसे एक और बच्चों ने बोला मोबाइल का प्रॉब्लम है, राइट? तो इस तरह के हम एक स्पेसिफिक, एक छोटी छोटी चीज को लेकर वी कैन हैव अ स्मॉल टॉक और कन्वर्सेशन, जिससे जो बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। उससे पहले क्या करना है, वो जो प्रॉब्लम्स है, नेचुरल जो स्टेटमेंट है, सिचुएशन है, उसको मेरे पास भेजना पड़ेगा, वेराइटी। तो आप भेजोगे तो मैं उनको समराइज करके मैं अच्छी तरह आपको, क्योंकि मेरे पास, मैं तो हाइपोथेटिकल दे रहा हूं ना। आज जितने एग्जांपल्स मैंने दिया, हाइपोथेटिकल दिया, एंड हाइपोथेटिकल इन व्हाट सेंस, जो वो मेरा इमेजिनरी है, बट वो मैंने ऐसे इमेजिन करा कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में अक्सर होता कैसे, है कि उसी हिसाब से मैं करके उसको लिंक करा। तो आप उसको आराम से करें। हम तो आजकल रिटायर हो गए ना, तो रिटायरमेंट वाले अक्सर वो क्या होते हैं, फ्यूज बल्ब हो जाते हैं ना, लोग बाग बोलते हैं, तो वो किसी काम के नहीं होते। तो इसीलिए हम तो चाह रहे हैं किसी काम किसी का आए। नहीं सर, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट इज द टाइम जहां पर आप अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को नाउ यूज कर सकते हैं। जब तक जॉब में रहते हैं टाइम नहीं होता, नाउ यू हैव अ टाइम टू।
So we also request you, I request you on the behalf of whole DDES and DDPS कि आप please कोटा आए, physically school visit करें, बच्चों से मिलें, teachers से मिलें, that will be valuable for all of us. वो तो अभी इस सिचुएशन में बाहर आना थोड़ी सर मुश्किल टैक्सी है। भेज देंगे आपके लिए। अरे नहीं, मेरे पास खुद की गाड़ी है, मैं लेके आ सकता हूँ, बट अभी तो बच्चे भी नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, देखते हैं, आई विल सी आगे। थैंक यू सो मच सर, फिर मिलते रहेंगे। मतलब मुझे लगता है कि दिस इज द इनिशिएशन ऑफ हमारी और भी वेबिनार्स। ओके Okay. Thank you so much, everyone, for giving us time. Thank you so much, sir. We were enlightened, and the knowledge you shared would be very grateful. We will be very grateful for that, and we are definitely going to be benefited by that. Thank you so much, and I hope everybody had a great time with us. Thank you so much, everyone. Thank you, sir.